based upon agriculture. Agriculture means the cultivation on land. Agriculture. Agri means field, culture means cultivation. The field cultivation or the land cultivation is referred to as agriculture. हमारे कंट्री में जितना भी अनाज या खाने के लिए जो भी क्रॉप्स आते हैं, crop means the plants which provide us with energy and are cultured or cultivated on a large scale. The chapter name itself says crop production and management, means the plants which are grown on a large scale to provide a number of people with food, and how it is being produced, or the process of production or the process of producing those crops and its management is told in this chapter. In your NCERT book, there are certain characters like Paheli and Bujho. Paheli and Bujho are the two characters which are playing the role of asking questions and answering them. There are certain blocks like blue, purple, in which there are certain questions and answers given by these two characters, Bujho and Paheli. As chapter number 1, the article 1.1 says agricultural practices, and you are having 1.23 till 1.10 the articles. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 and 1.10. After completion of the chapter, you are having the keywords at the back. And what have you learned? What you have learned means the chapter reading and understanding. The main points are given in this, and then the exercises. So, before starting, let me introduce few terms for you, like crop, like agriculture, agricultural practices, a farmer, the field, the farmer, the field, the instruments or equipments, soil, basic practices, kinds of seasons which are there for different crop production, the instrument and the practices, fertilizers, manures, difference between them, irrigation, sources of irrigation, methods for modern and traditional irrigation systems, harvesting, weeds means jangli ped paudhe, harvesting, threshing, storage, and food from animals. These things are being taught in this chapter. Let us now discuss the first article 1.1, agricultural practices. In this chapter, you are going to read about the practices which a farmer performs in order to grow crops. Crop are the plants which are grown on a large scale to provide millions of peoples living in this country with food. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called as a crop. For example, crop of wheat, gehu, means that all the plants grown in a field are that of wheat. एक बड़े से खेत में जो भी फसल या जो भी क्रॉप उगाया गया है वो एक तरीके का हो सकता है या अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं. There are certain practices which are performed by the farmer on the same field and with different crops. Example, mixed cropping. Mixed cropping means different crops are grown on the same field with the proper time and the conditions required for the growth and germination of seeds. In class 7th, you read about nutrition in plants and animals. You know about the digestion and you know about the requirements of food for any organism to prepare himself or herself for the daily routine work. Here we are going to read about the farmers practicing the practices
which give the rise for different variety of crops and different energy levels. In every article, there are many things which can be questioned in the form of, see, I have made certain things. Article 1.1, there are many questions here. I made 10 questions for this article. For example, name a practice that can provide food to a large number of people in our country. That is agriculture, agricultural practices. This is given in Article 1.1. You already know that crops are different types like cereals, vegetables, and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity, rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity means variety, two broad cropping patterns can be identified. These are Kharif and Rabi crops. There are the categories, two categories. There are certain categories, more than them. For example, Kharif. For understanding this, Kharif crops are rainy crops, मतलब जो रेनी सीजन्स में ग्रो किए जाएं. किसी भी बीज को मिट्टी में बोना इज कॉल्ड सोइंग. सोइंग मीन्स जब आप किसी क्रॉप को पैदा करने के लिए कोई भी प्रैक्टिस फील्ड में कर रहे हैं, उसके सीड्स को crops which are grown इस दौरान इन्हें ग्रो कराया जाता है एंड व्हेन दे गेट मैच्योर दे आर हार्वेस्टेड और उसकी कटाई होती है. हार्वेस्टेड का मतलब है उसकी कटाई. रबी क्रॉप्स आर विंटर सीजन क्रॉप्स दैट इज October to March. एग्जाम्पल wheat, gram, pea, mustard and linseed. इन्हें याद करने के लिए क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि which crops are grown in the rainy season और which crops are grown in the winter season. समर्स के लिए एक तीसरा क्रॉप है, क्रॉप टाइप है, दैट इज जैद क्रॉप विच इज नॉट गिवन इन दिस बट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन. खारिफ, रबी एंड जैद, ZAID, जैद क्रॉप्स. आप एक आर्टिकल में छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने आप बना सकते हो. 1.1 में ये जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, नेम अ प्रैक्टिस दैट कैन प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. What is it called when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale? These are called crops. On what basis the plants grown on a large scale at one place depends on classification. Variety of crops are grown in different parts of the country and these are divided or categorized on the basis of seasons. The fourth question, the crops which are grown or sown in the rainy season are called, रेनी सीजन में हमने पढ़ा खरीफ क्रॉप्स. विंटर क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज विंटर रबी क्रॉप्स. खरीफ एंड रबी, र से रजाई विंटर्स में होती है, र से रबी क्रॉप्स विंटर सीजन क्रॉप्स. जिस सीज़न में इन्हें ग्रो किया जाता है उसके मैच्योर होने के बाद उसके बाद वाले सीज़न में इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है या इसकी कटाई की जाती है. नेक्स्ट इज पैडी मेज. पैडी मीन्स राइस. राइस उगाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, दैट मीन्स रेनी सीजन क्रॉप, दैट इज खरीफ क्रॉप. पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच काइंड ऑफ क्रॉप्स, दैट इज खरीफ क्रॉप्स. Wheat, gram, pea, mustard and linseed are examples of which kind of crops? We just read. Wheat, gram, pea, mustard and linseed are grown in rabi crops, that is winter crops. Which crops are grown during the months of June to September? June to September, that is rainy season, matlab kharif crops. Months from October to March, that is winter, are suitable for growing which type of crops in India?
rabi crops. Next is the conditions like high temperature, humidity, rainfall is best suitable for growing which type of crops? High temperature, humidity, rainfall. Barish, kharif crops. In this way you can make questions from this NCERT book article wise. 1.1 का मैंने एग्जाम्पल दिया. I have made 1.2, 1.3, 1.4 also, but for first chapter of this subject I'm just telling you about how to make questions and notes for yourself at home. 1.2 is the basic practices of crop production. अब बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसको आप ऐसे समझो जैसे कि आप अपने घर पे कभी भी छोटा सा कोई पौधा गमले में लगाते हो. पौधा लगाओ या बीज ग्रो करने के बाद वो बड़ा होते हो देखो. बेसिक प्रैक्टिसेस या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर अ सेट ऑफ टास्क्स which a farmer performs in order to grow crops. Agricultural practices, it is given in this page. The activities or tasks are referred to as agricultural practices which are listed here. First one is preparation of soil. गमले में कोई बीज बोना मतलब preparation of soil. पहले आप गमले में मिट्टी तैयार करते हो और उस मिट्टी को तैयार करने का मतलब है कि उसमें अगर कोई पत्थर हो या क्रम्स हों, सॉइल के बड़े क्रम्स, उन्हें हटाना और उस मिट्टी को सूटेबल बनाना ताकि उसमें कोई भी बीज बोया जा सके या छोटा सा पौधा लगाया जा सके. इन इंग्लिश वी से सीडलिंग्स और सैपलिंग्स या प्लांटलेट्स. छोटे पौधे को सीडलिंग, सैपलिंग या प्लांटलेट कहते हैं. आफ्टर दैट सोइंग. द सेकेंड स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इज सोइंग, मतलब सीड या पौधे को बोना. थर्ड वन इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का मतलब है खाद. खाद का मतलब जो कि मिट्टी में, उस सॉइल में रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट इन्हांस करता है. इन्हांस करने का मतलब है उस मिट्टी को फर्टाइल बनाना. द वर्ड फर्टाइल मीन्स द एबिलिटी टू ग्रो क्रॉप्स is called fertility of the soil. You know that अर्थ की जो सतह है, द सरफेस लेयर ऑफ अर्थ, द सरफेस लेयर ऑफ अर्थ, दिस इज अर्थ. Surface layer is known as soil. The surface layer of earth is called soil. And the topmost fertile layer of the soil, topmost fertile layer of the soil is termed as humus. Humus is the dark colored organic matter. Dark colored organic means natural. Organic matter is humus, or you can understand humus like the dead parts of plants and animals on decomposition. Decomposition का मतलब है decomposition. compost और composition का मतलब है बनाना. decomposition का मतलब कोई बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ों में तोड़ना. dead parts of plants and animals का मतलब है, for example, plant parts which are dead are fallen from the tree like leaves, fruits, flowers after they get matured or have lived their life completely. वो सूखे पेड़ पत्ते पौधे जो मिट्टी पे गिरते हैं उन्हें डिकम्पोज करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि दिखाई नहीं देते हमें, very small, the tiny organisms which cannot be seen through our naked eyes,
are termed as or microorganisms. Organisms can be plants as well as animals, you know that. Organisms, anything that is made up of cell can be termed as organism. सेकेंड चैप्टर जो आपके सिलेबस में है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें कि बताया है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, कौन से हार्मफुल हो सकते हैं. एंड दीज आर very tiny or small, that cannot be seen without a microscope. Okay, dead parts of plants and animals like our excreta or our waste is mixed up in the soil and being decomposed, they form the humus or the dark colored organic matter made from the dead parts of the plants and animals on decomposition. Decomposition means breakdown. The surface layer of earth is called soil. The topmost fertile layer of the soil is called humus. Humus is made from the dead parts and plants, animals on decomposition. Decomposition is done by the microorganisms which cannot be seen without a microscope. Basically, these are bacteria, fungi, algae, protozoa, and viruses. These are the 5 major categories of microorganisms. The decomposition form is done by the help of bacteria and fungi. They turn the organic matter into usable or absorbable form for the plants for their growth by forming humus after decomposing the dead parts of plants and animals. The agricultural practices, third step, adding manure and fertilizers. I told you about the humus. Humus is the dark colored organic matter which is formed on the decomposition of dead parts of plants and animals. And manure is something which adds fertility to the soil and is organic. Organic मतलब जो nature में अपने आप खुद बना. Fertilizers are not organic, or you can term them as inorganic. Inorganic means which are formed in the industries by man for specific nutrient quality or specific mineral quality which is required for the growth of plants. Or here we are growing the crops on a large scale for providing many people with food. Fourth step, at different interval of time. जैसे आपने गमले में पौधा लगाया, उसे फर्टिलाइज़र या मैन्योर दिया, उसके बाद आप उसे पानी देते हो. Fifth step is protecting from weeds. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. वीड्स का मतलब है जंगली पेड़ पौधे, मतलब द अनवांटेड और अनकल्टिवेटेड प्लांट्स अराउंड आवर क्रॉप प्लांट विच टेक्स द न्यूट्रिएंट required by our crop unnecessarily. These are required to be removed from the field. This step, the fifth step of agricultural practices, weeds. Sixth step is called क्रॉप के जो हमारे ग्रेन्स हैं या जो भी हमारा क्रॉप प्लांट है, मेन मोटिव ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट क्रॉप इज तैयार होना, मतलब मैच्योर्ड. आफ्टर दैट मैच्योरेशन दे नीड टू बी हार्वेस्टेड. इसे हम छटाई या कटाई भी कहते हैं. इसके बाद आता है आपका सेवेंथ स्टेप, दैट इज़ कॉल्ड स्टोरेज. स्टोरेज मीन्स जब अनाज हमने पैदा कर लिया है, उसको काट लिया है और उसको अब रखना है, तो दैट स्टेप इज़ कॉल्ड स्टोरेज. फॉर दिस वेरी स्टेप देर आर सर्टेन areas or certain containers that are used for the storage function. 1.3, that article 1.3 is saying the preparation of soil. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का पहला स्टेप. इसे डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है. एंड दिस वेरी स्टेप shows the importance of soil fertility and the presence of nutrients in those fields or soil
the process which is termed as tiling or plowing. The term tiling and plowing is written in this page. The process of loosening and turning of the soil. इसका मतलब क्या है? लूज और टर्न करना. जिस तरीके से गमले में खुरपी के थ्रू गुड़ाई की जाती है उसे हम टाइलिंग या प्लाविंग कहते हैं. ये ज़रूरी क्यों है? Area for the seed or the plantlet. This is very important step for the agricultural practice because this is providing the stability or balance or and the plant body or the crop plant in the root from the soil. All the plants take their nutrition or minerals from the soil itself by holding it firmly through the roots. And the first step, preparation of soil, includes the tiling process or plowing process done with the help of agricultural implement or instrument known as plow. There are certain techniques which are used for these type of practice, for preparation, for adding manure or fertilizer, for irrigation or protection from weeds, or harvesting or sowing. These implements are termed as agricultural implements. In the figure 1.1, the farmer is using a plow with the help of 2 bullocks, and the main tools for this purpose are plow, hoe, cultivator. There are certain more which are used for this purpose and also for the figure 1.1 shows a hoe. इस आर्टिकल में 1.3 आर्टिकल 1.2 एंड 1.3 आर्टिकल में 1.2 में आपने जो पढ़ा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, देयर आर 7 स्टेप्स. एंड 1.3 में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में इंक्लूड हुआ टाइलिंग एंड प्लाविंग along with the agricultural implements called plow, hoe, cultivator. Questions can be asked in the form of the instrument structure or something like कि ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस में आएंगी. इन द लास्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर द फर्स्ट स्टेप दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज कल्टिवेटर, हो एंड कल्टिवेटर. कल्टिवेटर का मतलब जैसे ट्रैक्टर में पीछे कनेक्ट करके एक कंबाइन के साथ में, कंबाइन मीन्स द कल्टिवेटर इज बीइंग कंबाइंड बाय द ट्रैक्टर फॉर प्लाउइंग एरिया, फॉर प्लाउइंग द एरिया और द फील्ड. द पिक्चर इज showing this complete process. Then the article 1.4, that is sowing, the second step of agricultural practices. Sowing means seed को बोना, बीज को मिट्टी में बोना. Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. मतलब बीज बोने से पहले हमें बीज का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है. बीज का सिलेक्शन मतलब लाइक द गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स. Good and clean, healthy quality of seeds are selected by the farmer before sowing. So you can add this step, like first is preparation of soil, second is sowing, selection and sowing of seeds. Traditional tools for sowing seeds are shaped like a funnel, or you can say जब खेतों में फार्मर्स बीज बोते हैं तो उनकी बैलगाड़ी या बुलॉक्स के साथ में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उसके साथ एक फनल होता है जिसमें वो उस फनल में सीड्स को डालते हैं और सीड मिट्टी के अंदर एक सर्टेन डेप्थ तक पहुंच जाता है जिसको ग्रो करने में आसानी होती है. नेक्स्ट इज सीड ड्रिल.
सीड ड्रिल का मतलब है ये मॉडर्न मेथड है। मॉडर्न मेथड क्या मतलब? मॉडर्न इज समथिंग विच इज़ मोर एडवांस फ्रॉम द प्रीवियस वन, एंड प्रीवियस का मतलब ट्रेडिशनल जो हमेशा से चला आ रहा है, बट उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट लाया है। किस वजह से इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि विच इज़ सेविंग टाइम एंड लेबर एंड ऑल्सो प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ईल्ड का मतलब पैदावार। सीड ड्रिल एक इंस्ट्रूमेंट, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि सीड को प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ में सो किया जा सकता है। दिस इज़ अ मॉडर्न मेथड विच इज़ नाउ डेज बींग यूज बाय द फार्मर्स टू फॉर सोइंग बाय द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। और इसमें एक लाइन में आपने देखिए, दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इट इंश्योर्स दैट next is, see, this is written, there is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why they are kept like this? Seeds of a plant such as paddy means rice, are first grown in a nursery. When they grow into seedlings, they are transplanted to field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in nursery. So what is nursery? Why they are being kept in that nursery, or why they are required for growing in a nursery? या क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर होती हैं उसके जोम करने के लिए या उसके पौधा बनने के लिए। तो कुछ ऐसी जगह होती हैं जिन पर वो सारी कंडीशंस मैनुअली का मतलब है हमारे द्वारा या फार्मर्स के द्वारा वो कंडीशंस वहाँ पर बना के रखी जाती हैं आर्टिफिशियली, सो दैट उनकी ग्रोथ में कोई दिक्कत ना हो। और जैसे ही वो थोड़े से ग्रो करते हैं या वो हाँ, जो प्लांट्स उस टाइम पे ग्रो कराए जाते हैं, जैसे ही वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं या सीडलिंग्स में बन जाते हैं, सीड ग्रो नहीं कर पाता है नॉर्मली फील्ड पे धूप की वजह से, ज़्यादा ही तेज़ टेम्परेचर, या फिर उन्हें कोई भी बर्ड्स या कोई भी जानवर ख़राब कर सकता है, खा सकता है, या वो मिट्टी के अंदर प्रॉपरली नहीं दब पाए हैं, या इरिगेशन की वजह से उसका कुछ ना कुछ पोर्शन ऐसा हो गया कि वो ट्रांसप्लांट, ट्रांस मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लांट का मतलब है दूसरी जगह में उस पौधे को ले जाना और वहाँ पर आगे उसे बड़ा करना। दिस इज बीइंग लाइक टोल्ड इन these two blocks. After the growth, after the sowing at appropriate distance and depth, the seeds are required to avoid the overcrowding. इसीलिए उन्हें प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ में बोना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सफिशिएंट ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। जैसे ही आपने गमले में पौधा लगाया, उसको आपने प्रॉपरली सो कर दिया, मिट्टी में अच्छे से उसको लगा दिया, उसके बाद आपने उसमें मैन्योर्स डालने हैं। और मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्यों ज़रूरी हैं? बिकॉज दे ऐड fertility to the soil. The substances which are added to the soil in the form of nutrients are called manures and fertilizers, and this ensures the healthy growth of plants. And sometimes you may find few farmers do not use or do not have enough funds for addition of manure or fertilizers. They grow their crops without them. So उनके पास एक डिसएडवांटेज होता है कि उनके पास कोई एडिशनल मैन्योर और फर्टिलाइज़र नहीं है। तो एडिशन क्या एडवांटेज देता है और क्या डिसएडवांटेज देता है? मैन्योर का मतलब ऑर्गेनिक, मैन्योर का मतलब ऑर्गेनिक का मतलब जो नेचर में नेचुरली आया, जिसमें कि कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसका ग्रोथ कैसा है? प्योर है या ऑर्गेनिक है या नेचुरल है। फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक होते हैं, इसमें आर्टिफिशियली मेड या मैन मेड इन एक्सट्रैक्ट्स या केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। इन दोनों में मैन्योर का रिजल्ट लेट में मिलता है, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम
and is required in large amount. Fertilizers बहुत ही specific होते हैं. In short, you can call it NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, K for potassium. इन तीनों को specified form में कम amount में उस field में provide किया जाता है. इसका रिजल्ट जल्दी आएगा, फर्टिलाइजर्स का रिजल्ट जल्दी आएगा, बट एडवांटेज के साथ में इसका डिसएडवांटेज ये है कि वो मिनरल्स इनऑर्गेनिक हैं या आर्टिफिशियल हैं जो कि हम कंज्यूम करते हैं उन क्रॉप्स को खाने के बाद. तो उनकी ग्रोथ या उनका जो स्ट्रेंथ होगा या एनर्जी होगी हमारी बॉडी में, वो उतनी नेचुरल या उतनी फ्रूटफुल नहीं होगी एज कम्पेयर टू द ग्रोथ ऑफ मैन्योर फील्ड्स. तो दोनों के पॉइंट समझ में आए. मैन्योर्स ऑर्गेनिक हैं लेकिन इन्हें ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना पड़ता है, रिज़ल्ट लेट में मिलता है. फर्टिलाइजर्स कम अमाउंट में यूज़ किए जा सकते हैं और रिज़ल्ट जल्दी मिलता है. इन दोनों में सिर्फ टाइम और क्वालिटी का फ़र्क है. मैन्योर्स अब प्रेफर उतना नहीं किए जाते हैं, बट टुडे एज वी नो दैट वी कैन नॉट ऑब्टेन ओरिजिनल थिंग्स, ओरिजिनल और ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फूड. Organic farming is termed for these type of practices which are grown only with the help of organic things or organic substances, and fertilizers के साथ में पूरे कंट्री में बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं कम समय में. नेक्स्ट इज ग्रोथ रेट इफेक्ट होता है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के लिए. हाँ, क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स दैट दे आर आस्किंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के क्या इफेक्ट होते हैं या क्या बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी ग्रोथ रेट पे. क्रॉप्स को पैक करना वो फील्ड में एक फार्मर की जिम्मेदारी है. फार्मर ने उसको अच्छे तरीके से पैदा किया, आया, सीड्स भी के बाद हमारे घर तक पहुंची और हमने गेहूं, चावल, आटा, दाल, ये सब चीज़ें हमने कंज्यूम करी. वो सारे फूड्स जो कि उन क्रॉप्स के या उन प्लांट्स के थ्रू आए हैं जिनमें ये एलिमेंट्स यूज़ किए गए थे. मैन्योर ऑर्गेनिक है, इसका फॉर्म ओरिजिनल है, इससे ग्रोथ रेट पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता. लेकिन फर्टिलाइजर्स की वजह से पर असर पड़ता है. वो रिजल्ट तो जल्दी देता है लेकिन वो एलिमेंट्स नेचुरल नहीं देता. इसीलिए हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं जहाँ पर न्यूट्रिशन पहुँचता है या वो यूटिलाइज होता है एनर्जी बनाने के लिए, उसमें वो ओरिजिनल फॉर्म कहीं ना कहीं हमारे जो एक हेल्दी एज है, हेल्दी लाइफ, उसमें कमी लाता है. बैड हैबिट्स, बैड ईटिंग हैबिट्स रिजल्ट्स इन बैड क्वालिटी ऑफ बॉडी और बैड हेल्थ ऑफ द पर्सन, है ना. तो वो चीज़ क्या है आप उसको देख सकते हो कि अर्लियर यू मस्ट हैव रेड इन द हिस्ट्री सब्जेक्ट कि अर्लियर राजाओं की जो एक एवरेज एज होती थी 100 साल की बताई जाती थी. अब जो करंट टाइम है 2020 में बहुत ही जल्दी मतलब लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगती हैं हेल्थ वाइज. दे स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर और कार्डियक प्रॉब्लम्स और मैनी अदर डिजीजेज लाइक डायबिटीज़ एक्सेट्रा. विजन, पुअर विजन क्यों होता है, चश्मा क्यों लग जाता है जल्दी, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट्स या डेफिशिएंसी हो रही है या ओरिजिनल फॉर्म की कमी है. इवन जो काउज जो ग्रास खाती हैं और जो हमें मिल्क प्रोवाइड करती हैं, उनके दूध से जो हमें एनर्जी या कैल्शियम मिलना चाहिए वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं. और सप्लीमेंट्स का मतलब है जो ऑलरेडी जो एक्सट्रैक्ट्स हैं इनऑर्गेनिक तरीके से बनाए गए हैं. एग्जाम्पल लाइक बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, ये सब जो भी यूज़ होता है उसमें क्या है, वो एडिशन क्यों दे रहे हैं, वो क्या दूध के कैल्शियम को लॉक करने का ऐसा क्यों एडवर्टाइज करते हैं, क्योंकि दूध में अब ओरिजिनल चीज़ नहीं आ रही है. कहीं ना कहीं वो साइकिल है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है, क्योंकि अर्थ में ही, सॉइल पे ही जो ह्यूमस है उसको अब अडल्ट्रेशन मिला है. अडल्ट्रेशन मीन्स द फॉर्म ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटीज. नेक्स्ट इज मतलब लाइक फैलो फील्ड. फैलो का मतलब होता है लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. न्यूट्रिएंट्स रीजुविनेट होते हैं. रीजुविनेट का मतलब है एनरिच होना, या फिर उसको अगर जैसे कि खुला छोड़ देना. बेयर फील्ड का मतलब है उस पर कोई चीज़ नहीं उगाई गई है, तो अब उसके ऊपर क्या एक्ट हो रहा है, नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस या नेचुरल सनलाइट या उसके ऊपर जो भी रेनफॉल या एटमॉस्फेयर होगा वो इफेक्ट करेगा.
तो नेचर खुद को रिपेयर करने के लिए किसी चीज़ की हेल्प नहीं मांगती, वो खुद को रिजुविनेट कर सकती है, एनरिच कर सकती है विद द न्यूट्रिशंस और न्यूट्रिएंट्स. And this type of technique, leaving the field uncultivated for certain period of time, is called field fallow. Field fallow term यहाँ पर लिखा भी है, fallow और uncultivated. Next is continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. अब किसी भी फील्ड पे अगर बार बार खेती की जाए तो वो प्लांट्स उसके न्यूट्रिएंट्स ले जाएंगे. उन्हें अगर टाइम ही नहीं मिलेगा रिप्लेनिश होने का तो उसकी न्यूट्रिएंट कैपेसिटी या फर्टिलिटी पर बैड इफेक्ट पड़ेगा. इसलिए जो फार्मर्स होते हैं उन्हें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कब सॉइल को रिप्लेनिश करने का वक्त आया है तो उसमें हम मैन्योर ऐड करें या फर्टिलाइजर्स ऐड करें. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द फील्ड इज कॉल्ड मैन्योरिंग. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स. वीक प्लांट्स का मतलब है ऐसा नहीं कि उन प्लांट्स को स्टैंड करने में या उनके ग्रोथ में कोई दिक्कत होगी. वो ठीक है, वो बड़े होंगे, पेड़ ज़मीन से लगे होंगे, लेकिन उनका जो ईल्ड है या जो उनका क्रॉप है, पैदावार जिसे हम कहेंगे, वो उतना एनर्जी गिविंग नहीं होगा और इसी को वीक प्लांट्स कहते हैं. वीक प्लांट्स में ये भी आता है कि कुछ प्लांट्स हैं जो कि अपने मैच्योरेशन से पहले ही सूख गए या मुरझा गए या फिर उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाए. मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, डिकम्पोजिशन से, प्लांट और एनिमल वेस्ट से बना है. फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स. गड्ढे में ये सारी चीज़ें इकट्ठा कीजिए, बड़े से गड्ढे खोदे जाते हैं. ये हम अपने लाइक घरों में या कुछ भी ऐसा जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड या बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि किचन में जो वेजिटेबल्स के पील होते हैं या फ्रूट्स के पील्स होते हैं, उन्हें अगर कलेक्ट किया जाए, जैसे आप जानते होंगे ग्रीन वेस्ट और जो डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं वो सारे वेस्ट अलग, लाइक प्लास्टिक्स, दोनों डिफरेंट वेस्ट हैं. अगर ऑर्गेनिक वेस्ट है या नेचुरल वेस्ट है जो कि सब्जी या फलों के छिलके या पुराना जो भी है वो सामान, उसको अगर आपने गड्ढे में डंप किया और उसे ढक दिया तो वो कुछ दिनों में कंपोस्ट या उसका एक मैन्योर तैयार करता है. The decomposition is caused by some microorganisms. I told you about bacteria, fungi. The decomposed matter is used as organic manure. क्लास 6 में आपने वर्मी कंपोस्ट पढ़ा था. वर्मी कंपोस्टिंग, वर्म मतलब अर्थवर्म्स के थ्रू ये कंपोस्ट तैयार होता है. एंड यू नो व्हाट, फार्मर्स के है प्लाउइंग का मतलब गुड़ाई भी होता है. नेक्स्ट इज see in this page नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए डिफरेंट फॉर्म्स में हेल्प करते हैं. और फर्टिलाइजर्स जो हैं वो फार्मर को बेटर ईल्ड प्रोवाइड करता है. बेटर ईल्ड का मतलब जल्दी और बहुत सारी चीज़ें इन्हांस हुई. लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. हाउ लेस फर्टाइल का मतलब है कि अब उस फील्ड में सिर्फ फर्टिलाइजर्स की वजह से ही फर्टिलिटी है. अपने आप उस सॉइल में अब फर्टिलिटी नेचुरली नहीं बची है क्योंकि ये केमिकल्स हार्मफुल भी होते हैं. फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. ये कैसे पॉसिबल है? अगर लैंड में या फील्ड में एक्सेसिव यूज है फर्टिलाइजर का तो वो जो इरिगेशन होगा वो इरिगेशन का जो करेंगे क्योंकि वो अब डायरेक्टली उन एलिमेंट्स को, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को कंज्यूम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो घूम फिर करके ह्यूमन स्पीशी को भी इफेक्ट करता है. बिकॉज वी आर omnivore, we eat plants as well as plant eating animals. So हर एक चीज़ का बैलेंस इंपॉर्टेंट है. ये पूरा पैराग्राफ आप रीड करना. नेक्स्ट एक आपको मैंने टर्म बताया था क्रॉप रोटेशन या मिक्स्ड क्रॉपिंग. क्रॉप रोटेशन का मतलब है एक ही फील्ड में एक बार से ज़्यादा उगाए जाने वाले क्रॉप्स को रोटेट करना. मतलब ऑन द सेम फील्ड व्हेन द क्रॉप्स आर बीइंग grown on alternate methods.
is called crop rotation. Another method of replenishing the soil replenishment में adding manures और fertilizers के अलावा भी field fallow, leaving the field uncultivated for certain period of time is also helpful in replenishing the soil. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हेल्प करते हैं सॉइल के नाम होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, जो डिजीज़ कॉज करती हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो यूजफुल हैं। उनमें से एक आया राइजोबियम। इसके अलावा भी राइजोबियम, नॉस्टॉक, एनाबेना, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको आप शॉर्ट में BGA भी बोलते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी, और साइनोबैक्टीरिया। These are actually doing the work for fixation of nitrogen. नाइट्रोजन को फिक्स करना, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के लिए यूजेबल या एब्जॉर्बेबल फॉर्म में फिक्स करना इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ये हेल्प करते हैं सॉइल के इनरिचमेंट के लिए। लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जिन प्लांट्स की रूट्स पे रूट नोड्यूल्स का मतलब छोटी छोटी गांठें होती हैं, उन गांठ पर ये राइजोबियम, नॉस्टॉक, एनाबेना नाम के बैक्टीरियाज रहते हैं जो कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। आफ्टर दैट द फर्टिलाइजर मैन्योर, इट इज़ गिवन इन द चैप्टर इन द टेबल 1.1। डिफरेंस क्या है मैंने आपको बताया, ये आप रीड करना। एडवांटेजेस भी इरिगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर एट डिफरेंट इंटरवल्स, मतलब प्रॉपर वाटर करना किसी भी फील्ड को, क्योंकि प्लांट्स को 90% लगभग 90% वाटर चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, जैसा कि हमें भी चाहिए। जर्मिनेशन के लिए, सीड के जर्मिनेशन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, और ड्राई कंडीशन में सीड कभी जर्मिनेट नहीं करता। और जर्मिनेशन का मतलब है एक्टिवेशन ऑफ सीड, एंड एक्टिव फेज या एक्टिव सीड का मतलब है कि जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। द फर्स्ट साइन ऑफ जर्मिनेशन इज द स्वेलिंग अप ऑफ सीड। बिना पानी के वो पॉसिबल ही नहीं है। पानी, या फिर आप इसको मॉइस्चर भी कह सकते हो। पानी जो है वो प्लांट को, जो क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट भी करता है हॉट एयर करेंट्स या फ्रॉस्ट मीन्स बहुत ही ठंडे टेम्परेचर में उसको जमने से रोकता है, या फिर बहुत ही गर्म टेम्परेचर में उसे एयर करंट, हॉट एयर करंट से भी प्रोटेक्ट करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। The supply of water to crops at the regular intervals is called irrigation. इसमें आपके sources हैं, sources मतलब हम irrigation के लिए कहाँ से पानी ले सकते हैं। wells, tube wells, ponds, lakes, rivers और dams और canals, इन सभी में से पानी मिलता है। हेकली, राहत, ये चार जो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, इसका पानी देना, इसमें बहुत लेबर और टाइम कंज्यूम होता था, जिसके बाद अब उसमें दो तरीके के मेथड्स हैं, दैट इज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। या फिर कभी पार्क्स में देखा होगा, जब कहीं पर भी पानी एकदम से मतलब लाइक पूरा कंप्लीटली सर्कुलर मोशन में दिया जाता है। इसमें पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और प्रॉपरली जिस जगह पे चाहिए होगा उस जगह पे नहीं मिल पाता है, लेकिन यह है कि ये इरेगुलर या बहुत ज़्यादा पानी हर तरफ फैलाना है तो स्प्रिंकलर मेथड है। नॉजल, रोटेटिंग नॉजल्स, और उसमें सब घूमते हैं, आप ये देख चुके होंगे आसपास। जो नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम, दैट इज़ द मोस्ट यूजफुल और मतलब मॉडर्न मेथड फॉर इरिगेशन, बिकॉज ड्रिप सिस्टम का मतलब जो पिक्चर बना हुआ है 1.5 फिगर में, उसमें आप देख सकते हो कि जो फील्ड है उसमें प्रॉपरली पाइपलाइंस, ये बड़ा ही इफेक्टिव है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी के साथ साथ इसका जो सेटअप है वो बड़ा महंगा और डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन बस इसे लगाया तो पानी की बचत, टाइम
और लेबर, इन सारी चीज़ों में हेल्प मिलती है. ड्रिप सिस्टम इज़ द मॉडर्न मेथड विच इज़ मोस्टली यूज्ड बाय द are telling about the protection from weeds. Protection from weeds का मतलब, I told you, weeds are the unwanted or uncultivated plants which are grown on their own near our crops and take their required nutrients. मतलब जो हमारे क्रॉप्स के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं, ये वीड्स उनमें से वो क्रॉप्स वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से ले लेते हैं जिनको हमारे क्रॉप्स ज़रूरी फॉर्म में लेंगे. इसलिए हमें इन जंगली पेड़ पौधों को वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है. और ये हमें कहीं से भी कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं, इवन दे आर हमारे लिए हार्मफुल. इसको मारने के लिए वीडीसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है. वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स लाइक 2,4-D. ये स्प्रे किया जाता है ताकि वो वीड्स इनके कई मेथड्स भी होते हैं रिमूवल ऑफ वीड्स के, जो कि मैनुअली भी और केमिकल्स यूज़ करने से होते हैं. अब केमिकल इफेक्ट ये भी है कि वीडीसाइड्स का मतलब इनऑर्गेनिक, ये जब स्प्रे किए जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे क्रॉप्स को इनके एलिमेंट्स भी मिलेंगे और उन क्रॉप्स को मैच्योर होने के बाद हम भी कंज्यूम करते हैं. एक्सेसिव नहीं यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट इज, ये रीड करोगे आप, ईजी है दिस स्टेप. द 1.8 स्टेप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. आई टोल्ड यू आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ क्रॉप द क्रॉप इज हार्वेस्टेड. इसके लिए ये सिकल मीन्स हसिया, इससे काटा जाता है, कटाई होती है. हार्वेस्टिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं. हार्वेस्टिंग is matured is harvesters of machines. यहाँ नेक्स्ट पेज पे फिगर 1.8 1.9 जो दिया हुआ है, इसमें देखो जो ग्रेन्स होते हैं या जो अनाज होते हैं उनको उनके छिलके से या शाफ से अलग करना. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल द रिमूवल ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग. थ्रेशिंग का मतलब जो कटाई हो गई. आपने चारा मशीन देखी हो या सुना हो कभी कभी उसके बारे में. वो गांव में पाई जाती है, गोल गोल होता है, उसमें ग्रेन्स को जो है जब फील्ड से उसको काट लिया जाता है जड़ों से, ठीक है, उसके बाद उसको काटा जाता है छोटे टुकड़ों में सो दैट उससे आप छिलके और ग्रेन्स को फील्ड में चलाने के बाद वो सारे ग्रेन्स को शाफ्ट से अलग करता है. इसका दूसरा मेथड भी है जिसको आप बोलते हो विनोइंग. फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शाफ्ट बाय विनोइंग. विनोइंग का मतलब ये डिफरेंट है थ्रेशिंग से. थ्रेशिंग जो है वो समझ लो किसी भी ग्रेन को झाड़ना हुआ. झाड़ने का मतलब वो सारे ग्रेन्स को डायरेक्टली अपने शाफ्ट से हटा देंगे छिलके से और वो कलेक्ट हो जाता है. विनोइंग में क्या होता है, यही चीज़ हेल्प होती है, यही चीज़ की जाती है बाय द हेल्प ऑफ विंड. एक विनोइंग मशीन है, इसमें बहुत तेज़ हवा चलती है जिसमें कि हवा से वो हल्का वाला जो उसका छिलका होता है वो आगे चला जाता है और जो भारी ग्रेन है वो एक जगह कलेक्ट होता है. ये विनोइंग इज़ द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ्ट बाय द हेल्प ऑफ विंड. इसे मैनुअली भी किया जाता है जो कि कुछ बुक्स में पिक्चर्स में बना है बट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, जिसमें आप कभी एक चीज़ होती है जिसे सूप कहते हैं, नॉट दैट पीने वाला सूप, लेकिन वो सूप जिससे फटकते हैं और गेहूं को छिलके से अलग करते हैं या कोई भी ग्रेन छिलके से अलग किया जाता है. द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड स्टोरेज. अब जब हमारे पास ग्रेन आ गया है उसे स्टोर करने की ज़रूरत है. स्टोर करना मतलब इन दिस स्टेप स्टोरेज करने से पहले उन ग्रेन्स को सुखाना बहुत ज़रूरी है. सुखाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो ग्रेन्स को बैक्टीरिया या फंजाई या कोई और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़राब कर सकता है, स्पॉइल कर सकता है. दैट्स वाई द ग्रेन्स नीड टू बी ड्राइड ऑफ in the sunlight, under the sunlight, so as to remove the moisture content, and after that the storage can be done. In this article 1.9 there are certain things written and you'll be able to understand it. एक
कॉलम में दिया है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स का मतलब बीइंग एन एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री, अपने कंट्री में जितने भी सीजन्स हैं वो सीजन्स हार्वेस्टेड क्रॉप्स को दिखा रहे हैं किसी भी सेलिब्रेशन में. फेस्टिवल्स होते हैं जो वो किसी भी क्रॉप के मैच्योरेशन के बाद उसके सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द शैप और स्टोरेज को सेलिब्रेट करने के लिए मनाए जाते हैं. पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, ये सब सेलिब्रेशंस जो भी हैं वो क्यों हैं? क्योंकि हमारी फसल तैयार होती है उन सीजन्स के ग्रोथ और मैच्योरेशन और हार्वेस्टिंग के बाद. ये सब रीडिंग से आप समझ जाओगे. नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल और हाँ, सिलोज एंड ग्रैनरीज, ये जो 1.10 और 1.10A and 1.10B, the picture are depicting about the silos and granaries. ग्रेनरीज और गनी बैग्स, गेहूं की जो बोरियां होती हैं, इनको रखने की जो जगह होती है उसे आप ग्रेनरीज कहते हो. और गनी बैग्स का मतलब बोरी, और सिलोस का मतलब ये जो टैंक्स जैसे रख रहे हैं, इन सभी में वो स्टोर करे जाते हैं ग्रेन्स आफ्टर द ड्राइंग अप ऑफ सीड्स. ठीक है. एंड लास्ट टॉपिक इज फूड फ्रॉम एनिमल्स. फूड फ्रॉम एनिमल्स का मतलब जो भी एनिमल्स के प्रोडक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल एग्स, मिल्क एक्सेट्रा, वो सब के सब हमें एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन. पशुपालन का मतलब the things or the products obtained from the animals for mankind, livestock. ठीक है. एक और चीज है जिसको कहते हैं बफर स्टॉक. बफर स्टॉक का मतलब क्या है? इमरजेंसी स्टॉक का मतलब क्या है? कभी भी, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन का मतलब कि अभी जो भी खाना है वो किसी दूसरे स्टेट से यहाँ नहीं आ सकता, तो हर स्टेट के पास इमरजेंसी स्टॉक में कुछ फूड आइटम्स या ग्रेन्स होते हैं जिन्हें वो लोगों को प्रोवाइड कराते हैं ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ. एंड बफर स्टॉक का मतलब इमरजेंसी स्टॉक जो कि हर स्टेट के पास इमरजेंसी टाइम के लिए होता है. एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पशुपालन, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं जिन्हें हम केयर करते हैं, रेयर करते हैं उनके प्रोडक्ट्स के लिए जो कि हमारे लिए यूज़फुल हों. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. द की वर्ड्स: एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, द टास्क, अ सेट ऑफ टास्क विच अ फार्मर परफॉर्म्स इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप्स. एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, मतलब कि द रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स is called animal husbandry. Crop, the plants which provide us with energy or food are known as crops, which are grown on a large scale or field. Fertilizers, the inorganic substances or chemicals used for the enrichment of soil. Next is granaries, harvesting, irrigation, kharif. ये सब आप समझ जाओगे. Just go through the chapter once. Try to read these words and mark it in your chapter book. ये सारी चीज़ें, इन सब को आप एक्सप्लेन कर सकते हो एक बार की रीडिंग में. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइजेज एंड ऑल्सो द रिविजन ऑफ द चैप्टर बिफोर स्टार्टिंग और गोइंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो, दोस्त और दुश्मन, हार्मफुल एंड helpful and harmful. Okay, that's all for today. Thank you. Stay blessed.